वीडियो शुरू करने से पहले यार पिछले वीडियो की बात करना चाहूंगा। आप लोग ने काफी पॉजिटिव रिस्पांस दिया और काफी अप्रिशिएट किया उस वीडियो को, क्योंकि हमने थोड़ा अलग हट के वीडियो बनाया था। हमें लगा कि इस पे बात करनी चाहिए, इस पे कोई बात नहीं करता। तो अच्छा लगा कि हमने थोड़ी मेहनत की, तो उसमें तो आप लोग ने मेहनत की, व्यूज लाए एंड हमारे काम को अप्रिशिएट किया। तो आज थोड़ा हट के टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा मेन स्ट्रीम है कह सकते हो। आज उन क्लब्स की बात करेंगे जो कह सकते हो अब तक काफी अच्छा करते आ रही है ट्रांसफर मार्केट में। यूरोपियन क्लब्स की बात करेंगे, इंडियन क्लब्स की बात करेंगे। इंडियन में तो एक बहुत ऑब्वियस नाम है, उनकी तो करेंगे, लेकिन एक हमारे हिसाब से जो थोड़ी सी अंडर द रडार जा रही है उस क्लब की बात करेंगे। तो बिना टाइम खराब किए भाई लोग शुरू करते हैं। The first club we are going to talk about is PSG. अरे साले डॉक्यूमेंट्री थोड़ी बना रहे हो। पहला क्लब तो काफी ऑब्वियस है यूरोपियन फुटबॉल फैंस के लिए, एंड दैट इज गोइंग टू बी PSG. They have made the most signings so far this summer, and आप कह सकते हो it was very likely to happen because पैसे की कमी तो है नहीं, पूरे देश उनको बैक कर रहा है, तो आपको पैसे तो जब चाहिए तेल की टंकी आप जाके दे सकते हो दूसरी टीम्स को. So PSG has no problems financially and we have seen that in their signings. तो यार इनकमिंग्स की एक वन बाय वन बात करते हैं कि what do they provide to the team which they previously didn't have. अगर हकीमी से स्टार्ट करें तो राइट बैक ऑप्शन वाज अ वेरी ऑब्वियस वॉइड इन देयर टीम बिकॉज अलेसैंड्रो फ्लोरेंजी वो आया हुआ था लोन पे फ्रॉम रोमा. ही इज गॉन बैक टू रोमा and they had Colin Dagba as a backup option. He did feature in the Champions League and he had a मतलब solid performance considering कि इतना young player है वो. He didn't look really out of sorts, but दिख रहा था टीम में कि that is a hole which is being exploited in the right side. In terms of attacking भी थोड़ी सी underwhelming लग रही थी. Hakimi is a very solid attacking option for them, one of the best attacking fullbacks in Europe, but attacking उसकी जितनी अच्छी थोड़ी defensive woes हैं उसकी, because Inter में what happened, he used to play जो Conte का trademark wing back system है उसमें खेलता था, and he had 7 goals and 8 assists to his name as well. So you can say very productive season for him at the wing back position. But how does Pochettino utilize him? That remains to be seen. क्योंकि अगर Pochettino अपना system change करता है to accommodate Hakimi, which is a 3 at the back, which could happen, और उसकी अगली साइनिंग्स पे आएंगे तो you guys will understand. So I think if they switch to a 3 at the back, I think that is the best position to utilize Hakimi. दूसरी साइनिंग पे आओ तो जीनी वाइनाल्डम है भाई. बार्सिलोना का ऑलमोस्ट डन डील लग रही थी, बट लास्ट मोमेंट पे PSG डबल्ड हिज सैलरी एंड पोचेटिनो ने खुद फोन करा एंड ही केम टू PSG. काफी खुश लग रहे थे भाई इंटरव्यू में. तो इसका देखो, आई थिंक ही इज प्रॉब्ली एड्स अनदर डायमेंशन टू PSG's मिडफील्ड. क्योंकि पिछले सीजन देखो इन द चैंपियंस लीग दे हैड इन द मिडफील्ड पैराडिस, दे हैड इड्रिसा गे and they had Danilo Pereira. उस समय Verratti injured था, but otherwise Verratti would have featured for either of Danilo Pereira और Idrissa Gueye. So एक bite provide करता है इनके midfield को, that dynamism provide करता है, जब box to box energy provide करता है, which you really saw at Liverpool as well. Why Klopp valued him so much was because for the energy he provided, and that the same is going to do for PSG. आप देखो the other midfielders which PSG have, none of them provide what Wijnaldum does. Paredes एक अच्छा midfielder है, he is a good passer of the ball. But you can't say he has that energy which Wijnaldum provides. Same with Verratti in the Euros. आप देखते थे कि around 60th 70th minute Verratti की legs थोड़ी चली जाती थी. He needed to be subbed off, and he's not a player who's going to be going up and down the pitch constantly. Same with Danilo Pereira, more of a defensive player, and Idrissa Gueye. Probably one of the most prominent signings मेरे लिए at least is Sergio Ramos. पिछले सीजन उसका रियल में बहुत injury ridden था. He didn't feature as much as he wanted to, and then contract talks I think were influenced by that. Real were not willing to offer him 2 years and PSG ने उसे 2-year contract offer किया. Going by his transfer injury record, you can't say Real were wrong in doing that. Sorry Real Madrid fans, I might seem a little inconsiderate from me, but I think injury situation देख के ही I think that's why ultimately Real Madrid did not listen to his demands. Hakimi के साथ complement करता है in terms of the change in the system. So अभी तक जो center backs choice रही थी PSG की in the 4 at the back were Kimpembe and Marquinhos. But Ramos के आने से you can play a 3 at the back more comfortably. Ramos बीच में खेल सकता है. You have Marquinhos beside him, you have Kimpembe beside him, and you can play Hakimi and Juan Bernat as the attacking wing backs, and they fit well as well. क्योंकि आप Spurs अगर Pochettino को Spurs में देखो, both of his fullbacks used to be attacking fullbacks. Wingbacks नहीं होते थे, but they always used to contribute in the attack. And I think Bernat and Hakimi are very well suited to the wingback positions. So Ramos के आने से एक tactical flexibility मिलती है इनको that in playing that 3 at the back, which I think we will see a lot in Ligue 1 as well as the Champions League. And बाकी तो यार Donnarumma में ज़्यादा टच करने की ज़रूरत नहीं है. I think going on his performances in the Euros, I do expect him to come into the side right now. Though Keylor Navas has not done anything to be taken out of the team. उसका पिछला season was stellar in the Champions League, especially against Barcelona वाला मैच था, उसमें he made a lot of crucial saves for PSG.
And even in the City match, he was on song, but ultimately, though PSG हार गई थी, but you can say Navas was the standout player, and he has been ever since he left Madrid. I think PSG का one of the most consistent performers रहा है. So, little unfortunate for him. So I think Champions League is clearly their goal, and their signings really indicate that. चैंपियंस लीग जीतना ना जीतना तो स्पर्स मैनेजर पे भरोसा नहीं करूंगा मैं, लेकिन पीएसजी में एक ही है कि बैकर चला गया जो उनका लेफ्ट बैक खेल रहा था, और बर्नार्ड की इंजरी रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं, तो मे बी दे नीड अ न्यू लेफ्ट बैक एज वेल, कह सकते हो. तो काफी ज्यादा एक स्टेप और आगे चले आएंगे. अभी भी स्क्वाड बहुत तगड़ा है, नहीं करते लेफ्ट बैक तो भी कवर मिल जाएगा उनको, लेकिन लेफ्ट बैक ले ले तो आई थिंक वुड बी बेटर. अब वैसे फ्रांस से इंग्लिश चैनल पार करके चलते हैं भाई इंग्लैंड की तरफ. इंग्लैंड में एक बहुत ही ऑब्वियस नाम है, क्योंकि इंग्लिश अगर आप मैन यूनाइटेड सोच रहे हैं तो वो नहीं है, आर्सेनल सोच रहे हैं तो वो नहीं है. आई एम टॉकिंग अबाउट लेस्टर सिटी. भाई लोग लेस्टर मतलब कह सकते हो नॉट अ सरप्राइज यार, उनकी रिक्रूटमेंट भाई हमेशा से अच्छी रही है यार. उनकी एक दो ट्रांसफर छोड़ के मुझे ध्यान नहीं है उनका कोई भी ट्रांसफर फेल हुआ हो. एक बस गैजल को बोल सकते हो जो फ्री में आया था, और उसके लिए भी वो बेच को पैसा कमा लेंगे, तो वो भी फेल नहीं है. अहमद मूसा एक था जो कह सकते हो नहीं चला, लेकिन उसके अलावा देखो तो भाई दे सोल्ड प्लेयर्स लाइक मगवायर, ज्यादा इज्जत दे दी मगवायर को. दे सोल्ड प्लेयर्स लाइक चिलवेल, मारेस, कांटे. उसके बाद भी दे आर कम्पीटिंग फॉर द टॉप 4. उसमें काफी ज्यादा कह सकते हो क्रेडिट जाता है ब्रेंडन रोजर्स को भाई, और उनके ओनर्स को भी बहुत जाता है. लेकिन उनकी जो स्काउटिंग टीम है भाई, उनकी जो अकेडमी है, क्योंकि चिल्लो वगैरह अकेडमी से आए थे, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है भाई. और उनका एक जो सिस्टम है ना, बहुत बहुत अच्छा काम करता है. उनको पता होता है उनके टारगेट्स क्या है, वो समय नहीं खराब करते. ऐसा नहीं मैन यूनाइटेड की तरह या फिर आर्सेनल की तरह देखो कई दिनों तक डील चली जा रही है, कुछ 5 मिलियन 4 मिलियन पे कुछ वैल्यूएशन में अंतर है, उस पर बढ़त चली जा रही है कई दिनों तक. लेस्टर के साथ ये सीन नहीं है भाई. दूसरा क्लब अपने आस्किंग प्राइस रखता है, या तो वो मीट करेंगे या तो वो छोड़ के चले जाएंगे. ऐसे कुछ लटकाते नहीं है बीच में. जैसे वेस्ली फोफाना को देख लो भाई, और लास्ट सीजन सोयंचू को साइन किया था, बेंकोविच को साइन किया था. सीधे पैसे दो और डील खत्म भाई. वो जबरदस्ती डील को लॉन्गेट नहीं करते, और प्लेयर को जल्दी ले आते हैं अंदर, जिसके साथ वो टीम के साथ ड्वेल इन हो जाए, प्री सीजन मिल जाए, तो जब सीजन शुरू हो तो इज अप एंड फायरिंग. इस सीजन भी देख लो भाई, पैटसन डाका को साइन कर लिया भाई 23 मिलियन में फ्रॉम रेड बुल साल्जबर्ग. और एक प्लेयर है जो लिवरपूल से भी बहुत लिंक हो रहा था, क्योंकि साल्जबर्ग का जो सिस्टम है और लिवरपूल का सिस्टम है काफी सिमिलर है, तो काफी अच्छे से फिट इन भी होता, और एक यंग प्लेयर होता जो कह सकते हो पोटेंशियली आगे जाके फर्मिनो को रिप्लेस कर सकता था. लेकिन भाई लेस्टर केम इन, दे साइन हिम अप. उसके स्टैट्स देखो तो 34 गोल्स लास्ट सीजन कंबाइंड इन द चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन राउंड एंड द ऑस्ट्रियन बुंडेसलीगा. बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है, साल्जबर्ग इज द बेस्ट टीम, लेकिन टू स्टिल स्कोर 34 गोल, और अर्लिंग हालैंड ने भी वहीं गोल मार के आया था, तो भाई हल्के में नहीं ले सकते हैं. 12 असिस्ट भी थे विद 34 गोल्स, तो ऐसा भी नहीं, ही इज अ क्रिएटर एज वेल. उसके बाद देखो तो दूसरा भाई हमारे लीग 1 चैंपियन है बूबकर सुमारे, उसको 17 मिलियन में साइन किया है. कहूंगा ये एक बहुत ज्यादा अपग्रेड तो नहीं है टीम में, क्योंकि अगर आप उसके नंबर्स देखो तो सुमारे के भाई 2.6 टैकल्स प्लस इंटरसेप्शन से प्लस 90 एज कम्पेयर टू अ सिमिलर प्लेयर जो लेस्टर की टीम में एनडीडी है भाई, उसके पर मैच 6 है, तो डिफरेंस बहुत ज्यादा, आधे से भी ज्यादा अंतर है. लेकिन ये है कि एनडीडी 24 साल का है, सुमारे 22 का है, तो मे बी इन अ कपल ऑफ ईयर्स ही ग्रोस. एंड कह सकते हो क्योंकि लेस्टर के साथ ये भी है ना कि जब वो प्लेयर बेचते हैं ना, मे बी दे वांट टू सेल एनडीडी, उससे एक सीजन या 1.5 सीजन पहले वो अपना रिप्लेसमेंट ले आते हैं. जैसे सोयंचू को मगवायर को बेचने के 1 सीजन पहले ही ले आए थे, तो ये दिस इज समथिंग वी सी विद लेस्टर. तो मे बी इफ दे सेल एनडीडी इन द कमिंग अगले विंडो या फिर नेक्स्ट विंडो 2-3 साल में बेचते हैं अगर, तो तब तक सुमारे अपन रेडी होगा, क्योंकि मेंडी को साइन किया तो उन्होंने कांटे का रिप्लेसमेंट, वो ही हैज नॉट वर्कड आउट, एंड डेफिनेटली सुमारे उन पे का अपग्रेड है. और जो फाइनल प्लेयर उन्होंने साइन किया दैट इज रायन बर्ट्रैंड भाई. प्रीमियर लीग फैंस तो जानते ही होंगे उनको, 250 से ज्यादा अपीयरेंसेस है प्रीमियर लीग में. और वैसे देखो तो चिलवेल का बहुत आउट एंड आउट रिप्लेसमेंट साइन नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने कैस्टानियो को साइन किया था विच इज अ राइट बैक. लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक एक भी नहीं था भाई उनके पास, एंड यू नीड अ लेफ्ट फुटेड राइट बैक. एक उनका एकेडमी का प्रोडक्ट है भाई ल्यूक थॉमस, लेकिन उस पर अकेले आप रिलाई नहीं कर सकते. तो रायन बर्ट्रैंड इज अ वेरी अगेन श्रूड साइनिंग, इंटेलिजेंट साइनिंग भाई. एक्सपीरियंस है बंदे के पास, अच्छा लेफ्ट बैक है भाई, एंड ऑब्वियसली विल दे कम्पीट फॉर द स्पॉट, क्योंकि जेम्स जस्टिन की जब इंजरी हुई थी उससे पहले बहुत तगड़ा खेला था बंदा, और लग रहा था कि मे बी ही कुड मेक अ स्पॉट इन द इंग्लैंड स्क्वाड एज वेल. लेकिन उसके बाद ACL हो गई भाई, तो काफी समय तक बाहर है, उसको आने में समय में लगेगा. इज ऑल्सो राइट फुटेड, तो फिर एक लेफ्ट फुटेड लेफ्ट बैक आना बहुत मैंडेटरी, और फ्री में ले आओ भाई, इतना एक्सपीरियंस ले आओ, तो उससे अच्छा क्या होगा. तो ये हमारे 2 क्लब्स हैं यार. आप लोग बताना कि और कौन सी टीम आपके हिसाब से अच्छा परफॉर्म कर रही है ट्रांसफर विंडो में. अब वापस चलते हैं. इंग्लैंड से फ्लाइट ले ली हमने एंड इंडिया लैंड कर गए हैं, और भाई सब कोलकाता एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं. अचिन क्या लगता है ATK मोहन बगान से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए भाई? साइनिंग पे साइनिंग की जा रही है. ATK मोहन बगान और वैसे PSG की साइनिंग्स में काफी पैरेलल है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट साइनिंग्स है, कुछ काफी स्मार्ट फ्री ट्रांसफर्स भी हैं. तो अगर ATK मोहन बगान पे आऊं मैं, तो उनकी फ्री साइनिंग्स में तो देखो यार, तो जोनी काउको उन्होंने साइन किया straight from the Euros. He featured for Iceland in the Euros. It's a very smart signing, you can say, because of the experience he provides, especially because he's on a free as well.
दे हैव नॉट स्पेंट अ लॉट बिकॉज एज अ फॉरेन प्लेयर है, अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी होता तो दे वुड हैव प्रॉब्ली हैड टू स्पेंड ओवर द ऑड्स टू अट्रैक्ट हिम टू द इंडियन प्रोजेक्ट, क्योंकि प्लेयर्स नहीं आते until unless they are given a lot of फाइनेंशियल लीवे उनके पास होती है काफी। तो बाकी एक और स्टेटमेंट साइनिंग उनकी, रिकॉर्ड साइनिंग फॉर देम 1.8 करोड़ में आया है जो ह्यूगो बूमो फ्रॉम मुंबई सिटी। यू कैन से वेरी सिग्निफिकेंट अपग्रेड इन द साइड, क्योंकि मिडफील्ड में उनकी वो क्रिएटिविटी थोड़ी लैकिंग थी उनकी। अगर आप पिछले सीजन का जो फाइनल था अगेंस्ट मुंबई सिटी उसमें मिडफील्ड की बात करो तो दे हैड मैक्यू, दे हैड हर्नांडेज जो अब जा चुका है, ही इज अ फ्री एजेंट नाउ, एंड दे हैड लेनी रॉड्रिगेज हु इज अ मोर ऑफ अ सिटिंग मिडफील्डर, 34 का है। ह्यूगो बूमो प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी टू द मिडफील्ड जो काफी एब्सेंट थी पिछला सीजन। अगर आप उसका देखो आईएसएल में तो ये 3 goals and 7 assists in 16 matches for Mumbai City, very influential player for them in their road to the winning the ISL and especially as well as for FC Goa as well। आप पिछले सीजन देखो सर्जियो लोबेरा जब उसको लेके आया मुंबई सिटी, when he became the manager of Mumbai City, so he brought him over along with Ahmed Jahu to Mumbai City and you can't understate his influence। गोवा में उसके नंबर ज्यादा अच्छे थे, but in Mumbai's team as well he was pulling the strings। एक और इंडियन साइनिंग है जो इंडियन प्लेयर पे अगर आऊँ, इंडियन प्लेयर्स पे आओ तो लिस्टन कोलाको हैज कम। लिस्टन कोलाको को तो आपने देखा ही होगा इन द इंटरनेशनल क्वालिफायर्स जो हमारे थे फॉर इंडिया। ही मोस्टली केम ऑन एज अ सब्स्टिट्यूट और विंग पे काफी एनर्जी प्रोवाइड की थी उन्हें टुवर्ड्स द लैटर हाफ ऑफ द मैच एंड ही वाज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप एंड डाउन, एनर्जी व्हिच वी रियली नीडेड एंड यू कैन से ही हैज दैट फ्लेयर एज वेल, लुक्ड वेरी ब्राइट इन द क्वालिफायर्स। हमने उसे आईएसएल में इतना नहीं देखा तो अननेसेसरली वी वोंट गो ऑन प्रेजिंग हिम विदाउट प्रॉपर आइडिया, बट इन द क्वालिफायर्स जितना हमने देखा था आई थिंक ही प्रोवाइड्स अ लॉट टू देम ऑन दैट विंगर ऑप्शन। पिछले सीजन उनका विंग मनवीर सिंह खेल रहा था एंड मनवीर सिंह का तो आपको पता ही, हम काफी डिसअपॉइंटेड थे उससे क्वालिफायर्स में एंड ही कैन प्ले अप फ्रंट एज वेल। तो आई थिंक मनवीर सिंह को प्रॉब्ली अप फ्रंट शिफ्ट करने का प्लान होगा अलॉन्ग साइड रॉय कृष्णा। लिस्टन कोलाको कैन प्ले ऑफ द विंग एज वेल, ही कैन प्ले अप फ्रंट एज वेल, बट आई थिंक विंग इज द पोजीशन वेयर इज मोर कंफर्टेबल एट। एंड बाकी साइनिंग उनकी देखो तो यार अमरिंदर सिंह वाज द फर्स्ट साइनिंग इन द विंडो एंड ही इज गोइंग टू बिकम द कीपर, ही इज गोइंग टू बी रिप्लेसिंग अरिंदम एंड अमरिंदर सिंह आल्सो हैड अ स्टेलर सीजन फॉर मुंबई सिटी। फाइनल उसका थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था, ही मेड some mistakes which you don't want to see, but in terms of a keeper he's a very reliable keeper, 28-year-old। और बाकी साइनिंग्स जो उनकी फ्री एजेंट में आए हैं दीपक टांगड़ी, आपको अंडर 23 के वीडियो में भी हमने बताया था that he had a very good season last time around। he's come on as a free signing from Chennai City as well as आशुतोष मेहता एज अ राइट बैक जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड से आया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया था। अपुया की बात चल रही है, ही इज नॉट अ कंफर्म ट्रांसफर, दे आर रूमर्स गोइंग अराउंड अपुया। जैसे मैंने मिडफील्ड की बात की थी कि लेनी रॉड्रिगेज, हावी हर्नांडेज जा चुका है ऑलरेडी, so he's going to be coming straight into the side as well। and अगर अपुया साइन कर लिया तो it's really hard to look beyond them in terms of winning the ISL। मैं तो चाहूंगा यार अपुया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड में ही रहे, क्योंकि मुझे नहीं पता उसको कितना गेम टाइम मिलेगा एटी के मोहन बगान में, और अच्छा डेवलप कर रहा है तो जहां पे है अभी वहां स्टिक करे। मे बी इन द फ्यूचर ही कैन मेक द मूव, लेकिन अभी गेम टाइम के लिए एंड फॉर द इंडियन नेशनल टीम आई थिंक ही शुड स्टिक एट नॉर्थ ईस्ट। वैसे एक क्लब की और बात करते हैं जिसने काफी काम किया है ट्रांसफर मार्केट में, उनको काफी जरूरत भी थी काम करने की, क्योंकि लास्ट सीजन भाई लास्ट आए थे वो लोग, बिल्कुल भी अच्छा सीजन नहीं था। दे लॉस्ट देयर टॉप स्कोरर डिएगो मॉरिसियो भी छोड़ के कतर चला गया है, ऑब्वियसली आई एम टॉकिंग अबाउट ओडिशा एफसी भाई लोग। तो उनका अगर देखो तो दे हैव मेड सम गुड साइनिंग्स, फॉरेन प्लेयर्स भी अच्छे लाए हैं, स्पेनिश रेवोल्यूशन एक आया कह सकते हो डाविड विया के आने से, और इंडियन प्लेयर्स भी फ्री में कुछ अच्छे लिए हैं भाई उन्होंने। सबसे पहले तो भाई जोनाथन परेरा, फॉर्मर विलारियल प्लेयर, भाई पता ही होगा आप लोग को, काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है भाई, 113 मैचेस ला लीगा में खेले हैं, 203 मैचेस सेकंड डिवीजन में खेला है स्पेन की, एंड रियल बेटिस, विलारियल, रेसिंग सैंटेंडर 388 मैचेस खेल चुका है भाई, 75 गोल 50 असिस्ट हैं, तो वास्टली एक्सपीरियंस प्लेयर भाई। एंड ऑब्वियसली कह सकते हो एक जो काफी जो इंडियन प्लेयर्स हैं वो यंग है यहाँ पे अभी ओडिशा में, तो उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, तो उनके डेवलपमेंट में काफी फायदा होगा। उसके बाद एक और ऑब्वियस स्पेनिश नाम है इवान अंगुलो, पैसा यहाँ पे ओडिशा भी कर रही है, क्योंकि 4 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया भाई अंगुलो को, उसमें कुछ टैक्स बेनिफिट वगैरह भी मिले हैं। तो एफसी गोवा के बाद को पता फ्री एजेंट हो गया था, नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किया था, ये मूव टू ओडिशा। एंड कह सकते हो डिएगो मॉरिसियो को गोल को रिप्लेस करेगा, क्योंकि मैं ये अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पे बात भी कर रहा था कि भाई मॉरिसियो को गोल्स को कैसे रिप्लेस करेंगे, दे आर मेकिंग गुड मूव्स, लेकिन गोल्स कैसे रिप्लेस करेंगे। तो अंगुलो इस आंसर भाई, पिछले सीजन 14 गोल मारे थे। डिस्कॉर्ड से याद आया, जिसने डिस्कॉर्ड नहीं ज्वाइन किया कर लो भाई, ओलंपिक से लेकर फुटबॉल तक सारी पंचायत होती है, सारे अपडेट मिल जाएंगे आपको, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना डिस्कॉर्ड हमारा। अगर हम अपने प्लेयर भाई इंडियन प्लेयर की बात करें तो निखिल राज को साइन किया भाई, लोन पे साइन किया है, एंड ऑब्वियसली यंग विंगर है, इज ओनली 20 years old,
तो एक एक्साइटिंग साइनिंग है। मे बी जो एक नए रूल चेंजेस आए भाई आईएसएल में, उसको मैच करने के लिए भी किया गया हो। और अगर आप सोच रहे हैं क्या रूल चेंजेस हैं, तो इधर या इधर कहीं लिंक आ रही होगी, उसको देख लीजिएगा। वीडियो हमने बनाया था कि 5 नए रूल चेंजेस आ रहे हैं आईएसएल में, तो मे बी उसको देखते हुए ये साइनिंग की गई हो। उसके अलावा एक आइजैक वनलस्वामा भाई को साइन किया जमशेदपुर से, अटैकिंग मिडफील्डर, इज ओनली 24 ईयर्स ओल्ड। तो अदर गुड साइनिंग। मैंने इनको ज्यादा देखा नहीं है तो मैं जबरदस्ती अपना ओपिनियन नहीं दूंगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा इनके बारे में भाई, सीम्स लाइक अ गुड अपकमिंग मिडफील्डर। तो एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा जेरी को, जो ओडिशा एफसी में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। साहिल पनवर को साइन किया भाई, लेफ्ट बैक, हैदराबाद से, 22 साल का है, इसको भी फ्री में साइन किया। तो अदर गुड साइनिंग, क्योंकि इस पनवर को मौके नहीं मिल रहे थे। आकाश मिश्रा भाई 19 साल के हैं एंड बहुत ही फोड़ खेल रहे थे, नेशनल टीम में खेल रहे हैं। तो गुड मूव फॉर साहिल पनवर, उनको थोड़ा गेम टाइम मिले, थोड़ा डेवलपमेंट हो। उसके अलावा देखो तो सेबेस्टियन थॉमस को साइन किया भाई अपने आई लीग के चैंपियन से, ऑब्वियसली गोकुलधाम केरला से, वो ये भी फ्री में साइन किया। 22 साल के हैं, राइट बैक हैं। तो शुभम सारंगी को एक अच्छा कंपटीशन मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग ही इज गोना रिप्लेस सारंगी, लेकिन एक अच्छा कंपटीशन देखने को मिलेगा, हेल्दी कंपटीशन। और एक फाइनल लेफ्ट बैक एक और साइन किया इन्होंने, लाल रुआ थारा। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन की माँ की हक कर दी हो तो भाई लोग आई एम रियली सॉरी, एंड किसी को सही प्रोनाउंसिएशन बताओ तो कमेंट सेक्शन में बता देना। इनको केरला ब्लास्टर्स साइन किया, दैट टू ऑन अ फ्री। तो काफी सारे मूव्स कर रही है यहाँ पे ओडिशा एफसी, एंड मे बी ऑब्वियसली मेरे ख्याल से एम तो यही होगा कि लास्ट सीजन 11th है तो उससे ऊपर जाए। नया मैनेजर आ गया है कीको रमीरेज, ये भी स्पेनिश है। नया असिस्टेंट मैनेजर आ गया है जॉकिन गार्सिया सैंचेज, ये भी स्पेनिश है। तो भाई दाऊद विया इफेक्ट थोड़ा सा दिख रहा है, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, मे बी खाली मार्केटिंग के लिए था ये मूव, लेकिन अब लग रहा है कि शायद दाऊद विया का भी कुछ हाथ होगा इसमें, क्योंकि काफी सारे स्पेनिश प्लेयर्स एक साथ आ रहे हैं और दाऊद विया के बाद आ रहे हैं। तो कुछ क्रेडिट तो विया भाई साहब को देना पड़ेगा, बारसा लेजेंड है हमारे, तो फिर इज्जत तो बनती है। और जो मैंने लास्ट 4 प्लेयर बताया भाई, आप लोगों को उनकी एवरेज देखो तो 23.3 ईयर्स ओल्ड। तो कह सकते थोड़ा सा हैदराबाद एफसी की तरह मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, ब्रिंगिंग यंग इंडियन प्लेयर्स, डेवलपिंग देम। धीरे धीरे टीम भी बेटर हो रही है। तो भाई बढ़िया सिस्टम है, एंड ऑब्वियसली होपफुली जो साइनिंग की है, स्टार प्लेयर लाए हैं अंगुलो जैसे और जोनाथन परेरा जैसे, ये सब मदद करेंगे। और यंग प्लेयर्स डेवलप अगर करते हैं तो ऑब्वियसली 11 से तो ऊपर आएंगे। नया मैनेजर है, बहुत ज्यादा खास उसका वो तो नहीं है, एक जिम्नास्ट को मैनेज किया है जो जिससे भी बार्सिलोना फैंस जानते होंगे। मैच था हमारा फ्रेंडली, 4-0 जीत गए थे हम। उसके अलावा विस्ला क्राको को मैनेज किया है इन द पोलिश लीग। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, 46-47% कुछ विन परसेंटेज है भाई का। देखते हैं कैसे करते हैं, मैनेजर के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, तो भाई हवा में तीर नहीं मारेंगे, सीजन आएगा तो पता चलेगा। तो भाई लोग अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे लाइन, मैंने पीछे वीडियो में बोला लाइन लिखी होगी, प्लीज लाइक एंड वीडियो एंड शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल, वो करना ना भूलिएगा भाई लोग, एंड विल कैच इन द नेक्स्ट वन।